بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے حالات بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار تین تھے: عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز۔ عکاظ نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی جہاں پہلی ذی القعدہ سے 20 ذی القعدہ تک بازار لگتا تھا۔ اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے تھے اور وہاں ذی القعدہ کے خاتمے تک بازار لگاتے تھے۔ مجنہ مکہ سے نیچے وادی مرزہران میں ایک مقام کا نام ہے۔ ذوالمجاز جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے۔ وہاں پہلی ذی الحج سے 8 ذی الحج تک بازار لگتا تھا۔ اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں، وہ یہ ہیں: بنو عامر بن سعسع، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ غسان اور مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو البقا، کندہ اور کلب، بنو الحارث بن قاب، ازرا اور حضرامہ۔ ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت اور پیشکش قبول نہ کی، لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے۔ کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی، کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی، کسی نے برا جواب دیا، اور ان میں سب سے برا جواب مسلمہ قذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا۔ ایمان کی شعاعیں مکہ سے باہر۔ جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لائیں۔ یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری کی سی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: سوید بن سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کے شرف و شعر گوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی، آپ نے ان پر قرآن پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے یہ بہترین قول ہے۔ پھر وہ بعاث کی جنگ سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں قتل ہو گئے۔ ایاز بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یثرب کے باشندے تھے، نوخیز نوجوان، سن 11 نبوت کے اوائل میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاز نے کہا یہ واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحصیر نے بطحا کی کنکریاں اٹھا کر ایاز کے منہ پر دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، یہاں ہم دوسرے مقصد سے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ خاموش ہو رہے اور یثرب واپس آ کر جلد ہی وفات پا گئے۔ وفات کے وقت وہ تہلیل، تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع سوید بن صامت اور ایاز بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا، وہ گئے اور واپس آئے لیکن تسلی نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا اترے۔ پھر تقریباً 1 مہینہ مسجد حرام ہی میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا تھا، لیکن جان کے ڈر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھتے نہ تھے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان پر اسلام پیش کریں۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان
अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इधर ये सुना था कि कुरैश इन पर टूट पड़े और इतना मारा कि मर जाएं, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको बचा लिया और दूसरे दिन आकर फिर यही ऐलान किया और कुरैश ने फिर इतना मारा कि मर जाएं, और कल की तरह आज भी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर इनको बचाया। इसके बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कौम बनु गफ़ार में वापस आ गए, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो वो भी मदीना हिजरत कराए। तुफ़ैल बिन उमरो दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये शायर थे, गहरी सूझबूझ के मालिक और यमन के करीब वाक़ कबीला दोस्त के सरदार। सन 11 नबूवत में मक्का तशरीफ़ लाए तो अहले मक्का ने बढ़कर इनका इस्तकबाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर डराया कि जब वो मस्जिद हराम में आए तो कान में रुई ठूस ली कि कहीं आपकी कोई बात सुनाई न पड़ जाए। मगर हुआ ये कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास खड़े नमाज पढ़ रहे थे और आपकी आवाज़ इनके कान में पड़ ही गई। उन्होंने जो कुछ सुना बहुत अच्छा महसूस किया, चुनाचा जी ही जी में कहा, मैं सूझबूझ रखने वाला शायर हूँ, मुझसे भला बुरा छुपा नहीं रह सकता, फिर क्यों ना मैं इस शख्स की बात सुनूं, अगर अच्छी हुई तो कबूल कर लूँगा, बुरी हुई तो ना मानूंगा। चुनाचा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो वो भी आपके पीछे हो लिए और घर के अंदर आकर आपसे अपना वाक़या बयान किया और ये मुतालबा किया कि आप इन पर अपना दीन पेश करें। आपने इन पर इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत की। तुफ़ैल बिन उमरो दोसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, हक़ की शहादत दी और अर्ज़ किया कि मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है और मैं इनके पास पलट कर जा रहा हूँ और इन्हें इस्लाम की दावत दूंगा, लिहाजा आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि वो मुझे कोई निशानी दे दें। आपने दुआ फरमाई। चुनाचा जब वो अपनी कौम के करीब पहुँचे तो इनका चेहरा चराग की तरह रोशन हो गया। तब इन्होंने अल्लाह से दुआ की इसे चेहरे के बजाय कहीं और मुंतकिल कर दे। चुनाचा ये रोशनी इनके कूड़े में पलट आई। फिर जब वो अपनी कौम में पहुँचे तो इन्हें इस्लाम की दावत दी। वालिद और बीवी ने तो इस्लाम कबूल कर लिया मगर कौम ने ताख़ीर की। लेकिन जब उन्होंने सुलह हुदैबिया के बाद मदीना हिजरत की तो इनके साथ इनकी कौम के 70 या 80 घराने थे। जमाद अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये यमन के बाशिंदे और अज़द शनो के एक फ़र्द थे। झाड़ फूँक के ज़रिए पागलपन दूर करना और जिन्स व शैतान भगाना इनका काम था। मक्का आए तो वहाँ के अहमकों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह पागल हैं। चुनाचा वो आपका इलाज करने के लिए आपके पास आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं और इसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल है। अम्मा बाद जमात ने ये कलमात सुने तो इस कदर मुतासिर हुए कि इन्हें 3 बार दोहराने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइश की। फिर कहा, मैं काहिनों, जादूगरों और शायरों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने आप जैसे कलमात कहीं नहीं सुने। ये तो समंदर की अथाह गहराई को पहुँचे हुए हैं। लाइए, हाथ बढ़ाइए, आपसे इस्लाम पर बैत करूँ। और उन्होंने बैत कर ली। मदीना में इस्लाम। बैरून मक्का जिन इब्तदाई सादतमंदों ने इस्लाम कबूल किया, इनमें से ऊपर बयान किए गए 5 अफराद के बाद छठे का ताल्लुक़ मदीना के कबीला खज़रज से है। इनका नाम ये है, असद बिन ज़ररा, औफ बिन हारिस बिन रफ़ा, औफ बिन अफ़रा, राफ़े बिन मालिक बिन अजलान, कतबा बिन आमिर बिन हदीदा, अकबा बिन आमिर बिन नाबी, जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन राब। ये लोग सन 11 नबूवत में हज के लिए आने वालों के हमरा आए थे। इधर अहले यसरब जब कभी यहूद की जंग को वगैरह में ज़िक्र पहुँचाते तो इनसे सुना करते थे कि एक नबी इस वक्त भेजा जाने वाला है, इसकी बासत का ज़माना आन लगा है, हम इसकी मैयत में तुम्हें आद और अरम की तरफ कत्ल कर डालेंगे। चुनाचा ये लोग मना की घाटी में रात के वक्त बातें कर रहे थे कि वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आपने आवाज़ सुनी तो इनका रुख किया और इनके पास पहुँचकर फरमाया, आप कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, खज़रज का एक गिरोह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी यहूद के हलीफ? बोले हाँ। फरमाया, फिर क्यों ना आप हज़रात बैठें, कुछ बातचीत की जाए। उन्होंने कहा, क्यों नहीं। चुनाचा वो आपके हमरा बैठ गए। आपने इन पर इस्लाम की हकीकत वाज़े की, कुरान की तलावत की और अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ दावत दी। इस पर उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो ये तो वही नबी मालूम होते हैं जिनके हवाले से यहूद तुम्हें धमकियाँ दिया करते हैं, लिहाजा वो तुम पर सबकत ना करने पाएँ। चुनाचा उन्होंने
फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया और कहा कि हम अपनी कौम को इस हालत में छोड़ कर आए हैं कि किसी और कौम में इन जैसी अदावत और दुश्मनी नहीं। बस अगर अल्लाह ताला आप पर इनको इकट्ठा कर दे तो आपसे बढ़कर कोई और मौजज़ ना होगा। और उन्होंने वादा किया कि इस दीन की दावत देंगे और आइंदा हज में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। पहली बैत अक़बा। वादे के मुताबिक अगले साल सन 12 नबूवत के मौसम हज में 12 आदमी हाजिर हुए, 10 खज़रज से और 2 औस से। खज़रज के 10 आदमियों में से जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन राब को छोड़कर बाकी 5 तो वहीं थे जो पिछले साल आ चुके थे, और नए 5 ये थे: माज बिन हारिस, माज बिन अफरा, ज़कवान बिन अब्दुल कैस, अबादा बिन सामित, यजीद बिन सलबा, अब्बास बिन अबादा बिन नज़ला। और कबीला औस के 2 आदमी ये थे: अबुल हसीम बिन अल्तहान, अवीम बिन सादा। ये लोग मना की घाटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हुए। आपने इन्हें इस्लाम सिखाया और फरमाया कि आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, अपने हाथ पाँव के दरमियान से गड़ कर कोई बहतान ना लगाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी ना करोगे। अब जिस शख्स ने ये सारी बातें पूरी की तो इसका अजर अल्लाह के पास है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठा फिर इस दुनिया ही में इसे इसकी सज़ा दे दी गई तो ये इसके लिए कफ़ारा है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठा फिर अल्लाह ने इस पर पर्दा डाल दिया तो इसका मामला अल्लाह के हवाले है, चाहे तो सज़ा दे दे और चाहे तो माफ़ कर दे। इस पर इन लोगों ने आपसे बैत की, यसरब में इस्लाम की दावत। इसके बाद जब ये लोग वापस हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना फरमा दिया ताकि वो लोगों को कुरान पढ़ाएं और दीन सिखाएं। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू उमामा असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर क़याम फरमाया। फिर वो दोनों इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्म हो गए। एक रोज़ दोनों एक बाग में थे कि औस के सरदार साद बिन माज ने अपने चचेरे भाई असीद बिन हज़ीर से कहा, ज़रा जाओ और इन दोनों को जो हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाने आए हैं डांट दो। असीद ने अपना नेज़ा लिया और इन दोनों के पास आए। इन्हें असद ने देखा तो हज़रत मसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, यह अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है, इसके बारे में अल्लाह से सच्चाई इख्तियार करो। हज़रत असीद आए और इनके पास खड़े होकर बोले, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाते हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम हमसे अलग ही रहो। हज़रत मसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्यों ना आप बैठें और सुने, अगर हमारी बात पसंद आए तो मान लें, नागवार गुजरे तो जो बात भी आपको नापसंद हो हम इससे रुक जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमने इंसाफ की बात कही, और अपना हरबा नेज़ गाड़ कर बैठ गए। हज़रत मसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की बात की और कुरान की तलावत फरमाई। हज़रत असीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन इस्लाम को पसंद किया और इसे कबूल कर लिया और हक़ की शहादत दी। फिर हज़रत असीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस हुए और हज़रत साद बिन माज को इनके पास भेजने के लिए एक हेला अख्तियार किया। कहा कि मैं ने दोनों से गुफ्तगू की तो वल्लाह मुझे तो कोई हर्ज नहीं नज़र आया। वैसे मैंने इन्हें मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। अलबत्ता मुझे बताया गया है कि बनु हारिसा के लोग असद बिन ज़रारा को कत्ल करने निकले हैं, क्योंकि वो आपकी खाला का लड़का है और ये लोग चाहते हैं कि आपका अहद तोड़ दें। इस पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भड़क उठे और बिगड़े हुए इन दोनों के पास पहुँचे। इनके साथ भी हज़रत मुसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही किया जो हज़रत असीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया था, और अल्लाह ने इन्हें भी इस्लाम की हिदायत दे दी। चुनाचा वो मुसलमान हो गए और हक़ की शहादत दी। फिर कौम में वापस गए और कहा, ए बनु अब्दुल अशहल, तुम लोगों की मेरे बारे में क्या राय है? उन्होंने कहा, आप हमारे सरदार हैं और सबसे अच्छी सूझबूझ रखते हैं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम लोग अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाओ। नतीजा ये हुआ कि शाम तक कोई भी मर्द औरत ऐसा ना था जो मुसलमान ना हो गया हो। सिर्फ एक आदमी असीरम था जिसका इस्लाम जंग अहद तक मौखर हुआ। आज के दिन ये इस्लाम लाया और इससे पहले कि अल्लाह के लिए एक सजदा भी करे अल्लाह की राह में काम आ गया। फिर अगले मौसम हज से पहले हज़रत मसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह की कामयाबी की बशारतें लिए हुए मक्का वापस तशरीफ़ लाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम